آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ روہی کی خبر پر پنجاب سرکار متحرک شاکر شجابادی کا نشتر اسپتال میں علاج شروع ہو گیا۔ صوبائی وزراء عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی دیا گیا۔ وہی جنوبی پنجاب کی آواز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر ثقافت خیال کاسترو نے شاکر شجابادی کی عیادت کی اور 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک پیش کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا پنجاب کا سرمایہ ہے اور جو کچھ ہو سکے گا ہمارے بس میں ہوگا، ہماری گورنمنٹ کے بس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے 3 لاکھ کا چیک بھی بھیجا ہے جو ان کو ہم نے دے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور ہماری جتنے بھی یہاں سے ایم پی ایم این اے سب ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور آگے سے اور زیادہ خیال رکھیں گے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ شاکر شجابادی سرائکی خطے کا اثاثہ ہیں، پنجاب حکومت ان کا مکمل خیال رکھے گی۔ سرائکی پنجاب، سرائکی وسیب کے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں اور ان کو ہم شاعر جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال صاحب کا ہے۔ تو ان کے بڑے شعرا آفاق کلام ہے جو سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو خطے کی عکاسی ہے اس میں وہ نظر بھی آتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ 2019 میں بھی شاکر شجابادی کو 5 لاکھ روپے امداد دی گئی۔ پنجاب حکومت نے فکس رقم بھی ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھی ہے، جس کا ماہانہ منافع انہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ مختلف ٹینیورز میں حکومت پنجاب کی طرف سے اس خطے کی جو پہچان ہے شاکر شجابادی صاحب، ان کی خدمت میں مختلف اوقات کے اندر ان کی امداد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے وقتاً فوقتاً۔ ابھی بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے آج سے 2 مہینے پہلے 30,000 روپیہ پر منتھ ان کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کیا جو ان کو پر منتھ ملا کرے گا۔ سرکاری وفد میں پارلیمانی سیکرٹری برائے انفارمیشن پنجاب ندیم قریشی بھی شامل تھے۔ کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی نشتر اسپتال آمد ہوئی۔ عظیم شاعر شاکر شجابادی کی عیادت بھی کی، 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا اور 50,000 روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ سرائکی خطے کی ضرورت ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا شاکر شجابادی کی وائرل ویڈیو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ سرائکی وسیب کے نامور شاعر کو موٹر سائیکل پر باندھ کر ہسپتال لایا گیا، ہم سرائکی وسیب کے شاعر کا خیال نہیں کر سکے۔ میں آج صبح ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اتنا دکھ بھرا ویڈیو تھا کہ شاکر شجابادی جیسے عظیم سرائکی وسیب کی جو ایک شاعر ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل پہ ان کو باندھ کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں ساروں کو، اس سے زیادہ میں کیا کروں گا، میں دکھ کی بات ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنے گریبانہ میں جھانکنا چاہیے کہ یہ کیسے ہے کہ ایک ہماری سرائکی ثقافت کا علم بردار شاکر شجابادی، اس کے ساتھ ہم اس کا خیال نہیں کر سکے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کا مستقل حل الگ صوبہ ہے، جنوبی پنجاب کے اختیارات سرائکی عوام کے حوالے کیے جائیں۔ سابق حکومت نے جنوبی پنجاب کی عوام کا خیال نہیں رکھا۔ جنوبی پنجاب کا سرائکی وسیب کا صرف ایک پرماننٹ حل ہے ہمیشہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ سرائکی صوبہ بنے، ایک ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنے، تاکہ ہم بھاگ دوڑ سرائکیوں کے ہاتھ میں آئے، لوکل کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے، جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں آئے۔ شاکر شجابادی کی عیادت کرنے والے وفد میں ایم پی اے سلمان نعیم، زوار حسین، قاسم لنگا، خرم لگاری بھی شامل تھے۔ کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ سعودی پیکج کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، روپے میں جان آ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 20 پیسے کی کمی سے 173 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ سونے کی فی تولہ قیمتوں میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ صرافہ ڈیلرز کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کمی ہو گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونا 1,20,000 اور 22 کیرٹ 1,09,000 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ ڈالر سستا ہو گیا، سونا سستا ہو گیا، مگر انڈے کا فنڈا تاحال موجود ہے۔ سردی آتے ہی انڈوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ مارکیٹ میں انڈا 18 سے 19 روپے کا فروخت ہونے لگا ہے۔ فی درجن قیمت 190 سے 200 روپے ہو گئی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 165 روپے ہے۔ حکومتی ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔
महंगे हो गए। फी अंडा 18 से 19 रुपए का फरोख्त होने लगा। फी दर्जन कीमत 190 से 200 रुपए तक पहुंच गई, जबकि सरकारी रेट 165 रुपए है। हफ्ता पहले इतना ही सस्ता था, एकदम पता नहीं क्या इनको आग लगी है, किस वजह से महंगाई हुई है, इस लिहाजा इसलिए इस पे कंट्रोल करा जाए। गरीब आदमी कम से कम उसकी 200 रुपये मजदूरी, 500 मजदूरी, खाली अंडे दे के खाली काम थोड़ी ना चलाना उसने। होलसेल कहते हैं कि महंगाई की वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में अंडे मजीद महंगे होंगे। इस सीजन में फी अंडा 22 रुपए तक जाने का इम्कान है। इस दफा भी जाएगा, 20, 21, 17, 18 चला गया तो 21 रुपए। आप दुकानदार बेचारे 18, 19 रुपए का बेच रहे हैं। 1 रुपए उन्होंने कमाना होता है बेचारों ने। इस वजह से हमारे से लेके जा रहे हैं तो 70 रुपए, वो 90 रुपए, 80 रुपए दर्जन में चला रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन अंडों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खानेवाल के शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज हुआ। कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल के शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कचहरी चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब के बच्चे भूख से मर रहे हैं। गरीब आदमी की करे, किधर जाए? कोई दिहाड़ी है 400-500 दिहाड़ी है तो किड़ शह लगे, तो बहुत महंगाई है। गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ज्यादा महंगाई है, हम गरीब लोग पिस रहे हैं महंगाई में। 10,000 20,000 तनख्वाह हो और 10,000 बिल आ जाए तो 10,000 से क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना था हुकूमत कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे ले रही है और महंगाई के बायस भूखे मर रहे हैं। इनके हाल पर रहम किया जाए। जायज कर्जे ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर। नारे लगाती ये आवाम मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि अपने किए गए वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई को ही कम कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर मियांवाली के बासियों की चीखें निकल गईं। इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आ चुका है। अगर पेट्रोल मजीद महंगा किया गया तो लोग महंगाई के हाथों मर जाएंगे। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद सामान की तरसील पर भी किराया बढ़ा दिया है। 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। मौसम मुल्क की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। गुड्स किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। 10% इंक्रीज की है इन्होंने पार्सल और लगेज रेट्स में, और ये लेटर इशू हुआ है 26 अक्टूबर 2021 को, और ये नाफजुल अमल होगा 1 नवंबर 2021 से। इजाफी किरायों पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। रेलवे के जरिए सस्ते रेट्स पर सामान भेजने वाले हुकूमती फैसले से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत खुद महंगाई करना चाहती है। रेल के किराए बहुत ज्यादा कम थे, अब 10% बढ़ा दिए उन्होंने। तो ये है कि पहले हम 10,000 में बेचते थे, अब 15-20 हज़ार में जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे के साथ प्राइवेट गुड्स कंपनियों ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि रेलवे गुड्स किरायों में इजाफे के बाद अब प्राइवेट कंपनीज जो कि गुड्स का बिजनेस करते थे वो भी मजीद किराए बढ़ाएंगे और इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्क, मुल्तान। किला कोना कासिम बाग मुल्तान रवा के तारीखी विरसे को असल हालत में बहाल करने के लिए इक़दाम का आगाज। गैर ज़रूरी तामीरात रोकने के लिए किले पर काम करने वाले 7 सरकारी इदारों को एक छतरी तले लाने का फैसला कर लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब की ट्रेड, सियासत और सकाफत का महवर है। पूरी दुनिया से अकीदतमंद यहाँ औलिया कराम की दरगाहों पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। मुल्तान को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि किले पर इजाफी तामीरात रोकने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। फोकल पर्सन की मंजूरी के बगैर किले पर कोई तरक्याती सरगर्मी शुरू नहीं किया जा सकेगी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात की असल हालत में बहाली पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। PHA किले की खूबसूरती और लैंडस्केपिंग पर 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वज़ीर सकाफत खालिद अहमद कासरू का कहना था कि पंजाब हुकूमत सूबे में तारीखी विरसे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे मनसूबे पर अमल पैरा है।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की सरबराही में डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। जिला बिहाड़ी और खानेवाल के कई तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में इजलास में दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की तामीर मरम्मत की मंजूरी दी गई, जिस पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। बिहाड़ी के चकूक 405, 407, 409 की सड़कों की तामीर मरम्मत की मंजूरी भी दी गई, जिन पर 7 करोड़ 64 लाख रुपए लागत आएगी। जिला खानेवाल में कोट बरकत अली ता लंबा लिंक रोड की 5 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से तामीर मरम्मत, खोखराबाद ता हलीम शाह सड़क की 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर मरम्मत, जफरुल्ला चौक खानेवाल के तरफ की सड़क की 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर मरम्मत की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार एहसन भोन ने मैदान मार लिया। लतीफ खोसा को शिकस्त हो गई है। हामियों ने भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबी मार्के में आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भोन कामयाब हो गए हैं। कारकुन हूँ नदीम सिद्दीकी की तरह मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अपने कामना दोस्तों के साथ अपने आप को, क्योंकि ये लीडर, ट्रू लीडर जो है वो बार के वो वोटर्स हैं, वो लीडर्स हैं जो इलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि नैब में तकर्रुर और तबादले। इमरान अली शेख का तबादला नैब कराची से मुल्तान तैनात कर दिए गए। सैयद महर अली गिलानी का नैब मुल्तान से कराची तबादला किया गया। खुर्शीद आबिद नैब मुल्तान से नैब कराची तैनात। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स डिफाल्टर के अकाउंट्स तक एफबीआर की रसाई पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बरहम हो गई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि एफबीआर को अकाउंट्स तक दी गई रसाई तस्लीम नहीं करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जिनके केसेस ज़ेर समाअत हैं वो एफबीआर के अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकता। इस तरह लोग बैंकों में पैसे रखना ही छोड़ देंगे। किसी की अपील चल रही है एफबीआर में तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकती अटैचमेंट ऑफ अकाउंट से। ये इन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस बात को दोबारा एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है, पिछला ऑर्डर कैंसिल किया है। अब जिस बंदे की अपील चल रही है उसके अकाउंट से भी डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत नुकसान होगा। जो लोग इसकी वजह से बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे, उन्हें हर वक्त खौफ होगा एफबीआर का। पहले था कि एफबीआर इन्फॉर्म करता था, डिस्कस करता था और हायर अप से अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर फिर अकाउंट से पैसे निकलवा सकता था। अब ये डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। ये बहुत गलत इकदाम है। गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस जो पहले दी हुई थी, जो अवाम को टैक्स की तरफ लेके आने के लिए उसने फैसिलिटी दी हुई थी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कुरान करीम और असर हाजिर का नौजवान के उन्वान से सेमिनार हुआ। डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी ने खुसूसी खिताब किया। मियां मोहम्मद निजामुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कुरान करीम और असर हाजिर का नौजवान के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी, डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल, यूनिवर्सिटी फैकल्टी और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल का कहना था कि नौजवान नस्ल कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले। मुसलमान कौम बिलखसूस उसके तलबा और यंग मैन जवान जो हैं, मुमकिन नहीं है कि जब तक वो कुरान से न जुड़ जाएं, जब तक वो कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना न बना लें, उसके अंदर गौर व फिक्र और तदब्बर न करें, उनकी अपनी ज़िंदगी के हालात और मुसलमानों को जो इस सरजमीन पर इस दुनिया में इस वक्त मुश्किल हालात हैं उनसे निकला जा सके, ये इसके बगैर मुमकिन नहीं। डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी का कहना था कि कुरान से जुड़े रहने के बायस मुसलमान कभी गुमराह नहीं होता। ज़रूरत इस अमर की है कि हम नौजवान भी और बड़े भी छोटे भी सब कुरान का पाक के साथ जुड़ जाए। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानों में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने जिंदगी की 48 बहारें देख लीं। कारकुनान ने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीट ऑफिस और डिवीजनल ऑफिस में केक काटा। यह मनाजिर है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीट ऑफिस के, जहां नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की 48वीं सालगिरह का केक काटा जा रहा है।
सिटी सदर मुस्लिम लीग नून चौधरी जाहिद मसूद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद खुर्शीद कांजू, सदर कल्चरल विंग मुल्तान डिवीजन शहजाद करीम भट्टी, शेख आसिफ कुरैशी, कल्चरल विंग सिटी सदर चौधरी जाहिद मसूद, जनरल सेक्रेटरी कल्चरल विंग शाकिर दिलावर कुरैशी, जिली जनरल सेक्रेटरी कल्चरल विंग निशात खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे आप देख रहे हैं कि सब दोस्त मिलके मरियम बीबी की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ भी कर रहे हैं और उनकी आज सालगिरह भी मना रहे हैं। इस मैसेज के साथ कि उन्होंने हमें ये सिखाया है कि आपने किस तरह अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। मुस्लिम लीग नून मुल्तान के डिवीजन ऑफिस में भी मरियम नवाज की सालगिरह केक काटा गया। कारकुनान ने एक दूसरे को केक खिलाया, मुस्लिम लीग नून की खिदमात को सराहा और मरियम नवाज के हक में नारे लगाए। नहायत ही आज जो खुशी का दिन है, इसके बारे में मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि आप सब भी दुआ करें हमारे लीडर के बारे में। अल्लाह उनको इस हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीब के इख्तिताम पर मरियम नवाज की लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीम यार खान में 2 रोज़ा इंटर तहसील बैनुल मदारिस फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। पहला मुकाबला तहसील खानपुर जबकि दूसरा मुकाबला तहसील लियाकतपुर ने जीत लिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। पायलट सेकेंडरी स्कूल में 2 रोजा इंटरनेशनल बैनुल मदारिस फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर नोमान यूसुफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। DSO मोहम्मद इशफाक का कहना था कि खेलों के फरोग में मदारिस के तलबा को तरजीही बुनियादों पर शामिल कर रहे हैं। कमिश्नर नोमान यूसुफ साहब की खसूसी हदायत पर ज़िला भर से इंटर तहसील मदारस फुटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम तहसीलों से मदरसों की टीमें जौनसा है यहाँ पे शमूलियत कर रही हैं। पहले टाकरे में तहसील खानपुर ने सादकाबाद को शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में तहसील लियाकतपुर की टीम ने 2 गोल्स की बढ़तरी से तहसील रहीम यार खान को हरा दिया। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं टीम खानपुर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे और इंशाल्लाह अब हमारा कल फाइनल है और पहला मैच हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह कल के लिए प्रिपरेशन फुल है और इंशाल्लाह ट्रॉफी जीत के जाएंगे। आज हम मदरसा अबुल कासिम सादकाबाद की तरफ से रहीम यार खान में पायलट गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम आई, यहाँ खेला, खानपुर की टीम के साथ हमारा मैच हुआ, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। खेल के दौरान शुरका ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। DSO मोहम्मद इशफाक का कहना था कि वो सेहतमंद मुआशरे के कयाम के लिए कोशां हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अहमदपुर शर्किया में इंटर कराटे क्लब चैंपियनशिप MC हाई स्कूल में जारी है। बच्चों की कराटे चैंपियनशिप में 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। मजीद जानेंगे इरमान अकबर से। इरमान बताइएगा। में मालूस कराटे सेंटर की जानिब से आज जो है तकरीब तकसीम इनामात और उसके साथ जो है बेल्ट प्रमोशन का जो तकरीब की गई है। इस वक्त इसहाक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी बच्चों में काफी जो है जोश और जज्बा देखने को मिला हमें। ये जी जूनियर कराटे चैंपियनशिप हमने कराई है काफी अरसे के बाद। ये कोरोना की वजह से काफी लेट कराई है और माशाल्लाह आज अच्छी लड़के आए हैं। 4 क्लबों ने हिस्सा लिया जिसमें पहली पोजीशन मार्लोस कराटे क्लब ने, दूसरी जो है शोतोकान कराटे क्लब ने, तीसरी जो है नेशनल कराटे चैंपियनशिप नेशनल ली है और डेरा नवाब साहब ने 4th क्लास उस 4 में है। लेकिन 16 लड़के थे तकरीबन जिनकी बेल्ट प्रमोशन हुई है, उनको जो है ना इनामत भी दिए गए हैं और बेल्ट भी दी गई है। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर आप सभी नेशनल चैंपियन जी हमारे साथ मौजूद हैं कराटे के, शौकत गलू साहब, क्या कहना चाहेंगे जी आप आज के दिन के बारे से क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह की एक्टिविटीज में डालना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स साथ आए हैं क्योंकि ये पेरेंट का सपोर्ट जो होता है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है खिलाड़ी के लिए। तो आज बहुत ज्यादा खुशी है और मैं हर पेरेंट से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस एक्टिविटीज में कराटे एनीवन किसी गेम में भी इस एक्टिविटीज में लाएं ताकि एक बच्चे का जो स्पोर्ट्स माइंड होता है जिस तरह वो उसका माइंड एक्टिव होता है तो ना कि जो बगैर खेलने वाला नहीं खेलता उससे और एक खिलाड़ी के माइंड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा हर पेरेंट से वो आए से गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों को किसी न किसी गेम की एक्टिविटीज में जो है वो। इमरान अकबर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।